نمبر 1 यहाँ से पढ़ो। عقیدہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ جی یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ یہ آگے اس کے واجب الوجود والی بات جی شروع جی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، سن رہی بات ہے؟ جی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، میں نے کل یہ وضاحت کر دی۔ بے شک ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، پہلی یہ بات ہے۔ بے شک تو یہ بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، ذات میں شریک کیسے کوئی نہیں۔ یہ اس طرح شرک ختم ہوتا ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی دوسری ذات ہی نہیں ہے۔ بے شک بے شک ٹھیک ہے؟ جی تو یہ شرک فی ذات ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک ایسے تھوڑے جو دور لا دیں، شرک فی ذات اس کو کہتے ہیں، یہ بنیادی شرک یہ ہے، جی سب سے بڑا شرک ہے یہ۔ جی اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ شرک فی الذات۔ شرک فی ذات، کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جی کوئی دوسری ذات ہے۔ بے شک ٹھیک ہے؟ جی تو آپ نے اس شرک کو ختم کرنا ہے اور توحید فی ذات میں آنا ہے۔ جی تو کیسے کہیں گے آپ؟ کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا دوسری کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ بے شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی تو آپ ہو گئے توحید ذاتی والے۔ جی جی یہ توحید کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جی جی سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے جی کہ آپ یہ یقین رکھ لیں کہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کی ذات کے سوا کوئی دوسری ذات موجود نہیں۔ موجود نہیں ہے۔ یہ یقین رکھ لیا نا تو باقی شرک خود ہی ختم ہو گئے۔ بے شک شرک فی ذات گیا نا جب، جی تو پھر پھر صفات بھی گیا۔ بے شک ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ذات ہی کوئی دوسری نہیں تو صفات کہاں ہوں گی؟ بے شک ذات صرف اللہ کی ہے، صفات بھی صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کی۔ تو یار کھڑو ہو جاتا میں ہلی جانا گیا۔ ہاں جی، جی آگے کیا لفظ ہے؟ نہ افعال میں، نہ احکام میں، افعال میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں، بے شک نہیں ہے۔ بے شک یعنی فعل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فعل منا کام، جی سب کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس میں کوئی شریک ہے؟ نہیں جی، اچھا، آپ کو روزی دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں کوئی شریک نہیں، اچھا، کسی کو زندگی دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں کوئی نہیں شریک، کسی کو موت دینا اللہ تعالیٰ کا۔ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں کوئی شریک اس کا؟ نہیں ہے، اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں کوئی شریک؟ نہیں ہے کسی بھی صفت میں وہ کسی بھی کام میں جی، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، بے شک سب کام اسی کے ہیں۔ بے شک۔ سمجھ گئے بات آپ؟ جی یہ عقیدہ رکھ لو، جی توحید افعالی میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ نہ احکام میں، اور بات یاد رکھو، امام عبدالغنی نابلسی قدس سرہ العزیز نے کتاب الوجود میں لکھا ہے کہ جب تک توحید افعالی میں قدم نہیں رکھو گے مومن نہیں بن سکتے۔ اللہ مومن حقیقت میں وہی ہے جو توحید افعالی میں قدم رکھتا ہے، جی یقین رکھتا ہے کہ فاعل صرف اللہ تعالیٰ۔ بے شک۔ اب آپ کہیں گے جی ہم تو کام کرتے ہیں، وہ دو قسم کے کرتے ہیں، جی
कुछ तो काम हमारे अच्छे होते हैं जी और कुछ हमारे काम अच्छे नहीं भी होते हैं। जी क्या ख्याल है आप? जी ठीक है ना? जी तो फिर सारे काम अल्लाह के हैं, तो क्या अल्लाह ताला बुरे काम भी करता है? अल्लाह तो बुराई से पाक है। बेशक ये क्या बात हुई? सारे काम जब उसके हुए और उसमें कोई शरीक नहीं, जी तो फिर तो सारे बुरे काम भी तो उसी के हो गए। मेरे भाइयों, बात ये है कि ये इल्म तौहीद जब तक आपको पूरा हासिल न हो, जी ये मसला आप पर क्लियर नहीं होगा। जी बेशक इतनी सी बात मैं कह देता हूँ, काम सारे वही करता है। जो काम बुरे हैं वो उसने बंदे को कह रखा है कि तूने अपने सर लेने हैं, अल्लाह अकबर बेशक तूने कहना है कि ये मैंने किया। बेशक बुरे काम जितने भी होंगे अपने जिम्मे लेने पड़ेंगे, ये अमानत है उसकी। जी अब अगर कोई कहे बुरे काम के बारे में कि ये अल्लाह ने किया तो काफिर हो जाए, बेशक वो काफिर हो गए। अमानत में खयानत की तरफ से। जी जी हज़रत हल्लाज फरमाने लगे, मैं तुम्हें बताऊं वो अमानत कौन सी है जो हमारे सर पे रख दी है? वो यही है कि अल्लाह ने हमें फरमाया काम सारे मैं करूँगा, अच्छे काम मेरे खाते में डालने हैं, बुरे काम अपने खाते में डालने बेशक हैं। और हमने वादा किया कि हाँ हम ये कबूल कर, अल्लाह अकबर जो भी हमसे बुरा काम होगा हम कहेंगे हमने किया। बेशक इसके नतीजे में होगा क्या? यही वजह थी कि आसमानों को जब पता चला तो वो डर गए। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो नहीं उठा सकते। ज़मीनों को अल्लाह ने फरमाया ज़मीनें डर गई, पहाड़ों को फरमाया पहाड़ डर गए और कहने लगे हम तो ये अमानत नहीं उठा सकते। इंसान को बुलाया, कहा तू उठाएगा? इसने कहा जी आमन्ना, मैं उठाऊँ। बेशक इसका नतीजा क्या होना है? जब आप खुद कह रहे हो मैंने बुराइयां सारी मैंने की, ठीक है, अगर आप तौबा नहीं करेंगे ना जी तो उसकी सज़ा होगी। फिर जी अगर आप तौबा नहीं करेंगे उसकी सजा हो उसकी सज़ा होगी, और खुदा की सज़ा जो है बड़ी सख्त है। बेशक इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और जेल जो है ना खुदा की इतनी सख्त है कि आप पूरी तरह उसके बारे में सुन भी नहीं सकते। बेशक ये दोज़ख है जेल ऐसे उसकी, ही ऐसे ही जहाँ सज़ा दी जाएगी। जी आपको पता था मैंने ये सब अपने सर ले लिया, अगर मैंने तौबा नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जी इसके बावजूद आपने कहा मैं ये मानत उठाता। अल्लाह बेशक क्यों कहा आपने? इश्क में मोहब्बत में इसलिए कि आप थे इंसान, और इंसान आना सा से बना है, इसका माना है उसने मोहब्बत की। आहा जी इंसान का माना है मोहब्बत करने वाला। बेशक तो किससे मोहब्बत की? अल्लाह ताला से अपने पैदा करने वाले से। बेशक और जब मोहब्बत हो जाए फिर नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। ऐसे ही है बिल्कुल इसलिए मैंने कबूल कर लिया, सज़ा होगी नहीं होगी देखेंगे। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये इंसान तो जालिम है, अपने ऊपर जुल्म कर दिया है इसने, बड़ा नादान है, इसने ये भी नहीं देखा कि इसकी सज़ा भुगतनी पड़े शायद। और हाँ, सच्ची मोहब्बत हो जाए तो ख़ुद पर फिर जुल्म करना पड़ता है,
और ये नादानी नहीं है। नहीं है। नेक काम अल्लाह की तरफ मंसूब जी। और बुरे काम किसकी तरफ? इंसान की अपनी तरफ। तरफ। अपनी तरफ। कभी तसव्वुर भी ना आए कि अल्लाह ने किया ये बुरा काम। जिस दिन ये ख्याल दिल में बैठ गया उस दिन ईमान दिल से बाहर निकल गया। बेशक। और उसमें मैंने हिकमत आपको बता दी। शैतान ने क्या किया था? यही किया। यही किया था। उसने कहा कि रब्बे अग़वैतनी, तूने मुझे गुमराह किया। तो बेअदब हो गया ना। बेशक। अल्लाह ने फरमाया निकल यहाँ से, तू बेबाकी करता है, हमारी गुस्ताखी करता है, जी। जा यहाँ से दफ़ा हो जा। तुझे हमेशा के लिए शैतान मरदूद रजीम लानती बना दिया। तो बस अगर लानती और शैतान और मरदूद बनना है ना तो कोई बुराई को अल्लाह की तरफ मंसूब कर। बुराइयों को शैतान की तरफ भी कर सकते हैं। बाबा करते आप हैं तो मंसूब शैतान की शैतान तरफ। की तरफ कर देते हैं। वो अमीर मिनाई ने सच नहीं कहा, हंसी यूँ आती है मुझे हजरत इंसान पर, बेशक। फेल बद तो खुद करे लानत करे शैतान। ये भी तो तमाशा है ना एक। ये भी है ना कि बुरे काम सारे शैतान करवाते हैं। वो करवाता है ना, वो तो आपका करता जहन तो उधर नहीं है लगाता ना। है ना। करते करता आप, तो नहीं है ना, अभी किसी ने हाथ पकड़ा है ऐसे। समझ में आ गई बात। जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी तो भूल हो गई है ना। जी। अल्लाह ने फरमाया था जन्नत में ये जो है ना दरख्त, इसका फल तुमने नहीं खाना, और उन्होंने खा लिया ना, जी। जन्नत से निकाल दिए गए। जी। और वो क्या कहते थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमारे रब हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। बेशक। वइल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर तूने हमें न बख्शा, हम पर रहमत न फरमाई, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये हमने किया जो। बेशक। अल्लाह ने फरमाया आदम तू हकीकत नहीं जानता? कहने लगे जानता हूँ। फरमाया फिर तू क्यों कहता है कि ये हमने खुद किया है? कहने लगे इलाही इसलिए कि मुझे तेरी तरफ ये बात मंसूब करते शर्म आती है। फरमाया अच्छा तो हमारा इतना अदब करता है? या अल्लाह हाँ। फरमाया फिर जो मकाम हमने तुझे पहले दिया था वही दोबारा दे। बेशक। समझ में आ गई बात? जी। तो हमेशा अपने आप को गुनाहगार ही समझना। बेशक। आगे समझ में जी। कभी खुद को नेक ना समझना, कभी भी। नेकी की नहीं तो समझना कि नेकी तो की अल्लाह ने, बेशक। हमने तो बुराई की सारी। बेशक। तो हम कैसे नेक हो गए? सारी बुराइयां करके नेक को। जो बुराई करता है वो बुरा ही होता है। यही वजह है कि औलिया अल्लाह ने कभी खुद को नेक नहीं समझा। बेशक। हमेशा रोते इस्तिग़फ़ार करते थे, कहते थे सबसे बड़े गुनाहगार हम। बेशक। आए और कोई गुनाह हो या न हो, जो हम खुद को मौजूद समझते हैं ये सबसे बड़ा गुनाह है। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे किसी किताब ने इतना फ़ायदा नहीं दिया जितना मुझे इस एक शेर ने फ़ायदा दिया। किसी शायर ने अपनी महबूबा के बारे में वो कहता है कुल्तु लहा मा अज़नबतु। जी। शायर कहता है मैंने अपनी महबूबा से कहा कि मेरा क्या गुनाह है? उसने कहा वजूद का ज़म्बुन ला युकासु बिही ज़म्बु, ये तेरा मौजूद रहना ही गुनाह है, इसके बराबर कोई दूसरा गुनाह है ही। सारे औलिया अल्लाह इस बात पर मुत्तफ़िक़ है। और औलिया अल्लाह अंबिया इकराम के वारिस हैं। बेशक।
जो इल्म अम्बिया का है वही औलिया का है। بے شک तो इस पर जो सारे वली मुत्तफिक हो गए, इससे पहले नबी मुत्तफिक थे तो वली मुत्तफिक हुए। بے شک तो सारे नबियों का यही फैसला है بے شک और हमने उसके खिलाफ नहीं जाना। चले गए। हम समझते हैं जी हम हैं, क्यों जी समझते हो कि नहीं? जब आपने ये समझ लिया तो सारे औलिया के भी खिलाफ हो गए, सारे नबियों के भी खिलाफ। तो बताओ सबसे बड़ा गुनाह किया कि नहीं किया? तो इस गुनाह से कैसे बचोगे? बहुत मुश्किल है इस गुनाह से बचना, और ये है सबसे बड़ा गुनाह। جو ہم خود کرتے ہیں जो सबसे बड़े गुनाह से नहीं बच सकते आप, तो गुनाहों से निकले कब? हमेशा गुनाहगार ही ठहरे और क्या جی ठहरे? بے شک क्या ख्याल है आप? आप कह भी दोगे जी मैं मौजूद नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ऐसे करूँगा तो आपको ओह ये क्या कर दिया जी आपने, आप तो थे नहीं तो आपको हुआ क्या जी? तो बात कही कुछ और करके दिखाया कुछ और, ये तो हो गई मुनाफिकत होना। समझ में आई बात? جی तो मुनाफिक गुनाहगार नहीं होता। سب سے بڑا कैसे निकलोगे इससे? औलिया अल्लाह इससे निकलते निकलते जिंदगी गुजार रहे हैं। सारी जिंदगी इससे निकलने में गुजर गई। हमने तो कभी निकलने की कोशिश ही नहीं की, सोचा ही कभी नहीं कि हम भी इस गुनाह से निकलें। सोचा है कभी ऐसा? نہیں جی आपने सोचा कैसे निकले? हाय हाय। अल्लाह से ही इल्तिजा हो सकती है कि हमें निकाले। بے شک अच्छा जनाब, आगे क्या लफ्ज़ है? نہ احکام میں احکام نہیں احکام احکام। میں احکام حکم کی جمع ہے। بے شک حکم میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ جی بے شک قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ کر۔ مان لو کہ حکم صرف اللہ کا چل رہا ہے، کسی دوسرے کا नहीं دوسرا ہے کوئی نہیں، تو حکم کس کا چلے گا پھر؟ اب یہ جو حکم دیکھ رہے ہو جو ہم پر چل رہے کس کے ہیں؟ الگ الگ تو کچھ اب معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو نقصان ہوا وہ بھی اللہ۔ اور ہم تو لوگوں کو کوستے ہیں انہیں جادو کرتا ہے میرے، حالانکہ بیمار کنے کی طرف الگ الگ अल्लाह की तरफ اللہ نے کیا نا، تو ہم کس کے پیچھے لٹھ اٹھا کے پڑ گئے؟ اپنے جیسے بندے کے پیچھے۔ کیا وہ بندہ خود کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں جی قرآن میں رب نے خود فرمایا ہے جادوگروں کے بارے میں، جو لوگوں کو نقصان دیتے ہیں نا، جی ان کے بارے میں پہلے سپارے میں وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتے مگر اللہ کے حکم سے۔ بے شک شیطان کے بارے میں فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، یہ جو کانوں میں پھس پھس کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے محفلوں میں بیٹھ کر، یہ شیطانی کام ہے، وہ دوسرے ایمان والوں کو غمگین کرنا چاہتا ہے، اور شیطان کسی کو کچھ نقصان نہیں دیتا مگر اللہ کے حکم سے۔ بتائیں جی، پھر لٹھ لے کے شیطان کے پیچھے پڑ جانا چاہیے، اور جادوگروں کے، اور جو لڑا مجھے گالی دی کسی نے،
मेरे चोरी कर ली, किसी ने डाका मार लिया, तो उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। नहीं। मामला में अपना दिल और दिमाग अल्लाह की तरफ लगा लो। किधर? अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ। अगर इस बात में आप पक्के हो गए तो आप अल्लाह के वली। हुक्म खुदा का ही चल रहा है, उसमें किसी का नहीं। उसमें अल्लाह के साथ कोई दूसरा शरीक नहीं। नहीं। आगे चल। ना अस्मा है, नाम जो है ना जितने, वो सब अल्लाह के हैं, बेशक। क्योंकि है वही। बेशक। उसके किसी नाम में कोई दूसरा उसका शरीक नहीं। मुझे आप ज़फ़र साहब बताएं, जिसका ये ईमान हो किसी किस्म का कोई शिरक उसके करीब से गुजर सकता है? बिल्कुल नहीं। उस जैसा तौहीद वाला कोई और हो सकता है? नहीं। तो इस तौहीद को क्यों नहीं मान लेते कि शिरक की जड़ ही कट जाए? मानना ज़रूरी है कि नहीं? इसी पर यकीन रखो। जी आगे क्या है? वाजिबुल वजूद है, यानी इसका वजूद ज़रूरी है, और अदम महाल कदीम है। वाजिबुल वजूद है, जी बेशक। ये दूसरा अकीदा आ गया। जी पहला अकीदा वहाँ तक, लेकिन इन्होंने तो एक ही मिसाल एक ही दाखिल कर दिया है। अल्लाह वाजिबुल वजूद है। वाजिब का माना है ज़रूरी, वजूद का माना है मौजूद होना। खुदा का मौजूद होना ज़रूरी है। बेशक। ठीक है जी। जी ये बात ज़रूरी है कि अल्लाह मौजूद हो। जी समझ गए बात? जी। ये किसका तकाजा है? ये उसकी अपनी ज़ात का तकाजा है कि वो मौजूद हो और मौजूद रहे, और उसका मौजूद न होना मुहाल है। मुहाल यानी नामुमकिन है। मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह किसी वक्त में मौजूद ना हो। जी बेशक। तो अल्लाह हमेशा से हमेशा के लिए मौजूद है, और उसका मौजूद रहना ज़रूरी है, और मौजूद ना होना मुहाल है। मुहाल यानी मुमकिन नहीं है। बेशक। चलो, यानी हमेशा से है, अजली के भी। कदीम है। बेशक। कदीम का माना हमेशा से है, अजली का भी यही माना है, जी। और अबदी भी इसी को कहते हैं, जो हमेशा से हो, हमेशा के लिए। अजली के भी यही माना है, बाकी है। बाकी है यानी अबदी है, हमेशा रहेगा। बेशक। अबदी का ये माना। यानी हमेशा रहेगा, और इसी को अब्दी भी इसी कहते को हैं। वही इसका मुस्तहिक है, इसकी इबादत व परस्तिश की जाए। अल्लाह ही इस बात का हक रखता है कि इबादत सिर्फ उसकी की जाए। बेशक। यानी माबूद सिर्फ वही है, कोई दूसरा नहीं। नहीं। इबादत में भी कोई उसका शरीक नहीं है। बेशक। कदीम होने में ये अल्लाह की सिफत है ना, जी। उसमें कोई शरीक नहीं। बेशक। ठीक है जी। जी। और वाजिबुल वजूद ले ज़ाती ही होने में भी कोई उसका शरीक नहीं है। नहीं। अल्लाह हमेशा से मौजूद है, और उसका मौजूद रहना ज़रूरी है, और अल्लाह कदीम है, हमेशा से है। अल्लाह बाकी है, हमेशा के लिए है। बेशक। जी आगे चलो। अकीदा वो बेपरवाह है, किसी का यहाँ से मोहताज। कल ना जी इंशाल्लाह। टाइम हो गया होगा। जी।